then he would have been a petitioner that he has been expelled. I know. आप दिखाइए ना मैंने ये एक्सपेल किया हुआ है। तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना, तो आपके कहने से काफी है, तो काफी है। पार्टी से नहीं, अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते एंड वुड हैव चली जाती। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ। That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging my under section 205 के तहत मैं challenge करूँगा? No, you don't prove a negative, you prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. No, party हो फिर को मैं ही डिनाई कर रहा हूँ, तो देखिए सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट तो नहीं चलेगा। ये चलिए खैर आगे बढ़े। We have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol, ये एक अलग बात, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात, हमने नोट कर ली। Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब बात आ जाएगी, do you deprive 850,000 of your memberships the right to vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस में 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो, आज बाय दिस एक्ट ऑफ ईसीपी दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट। हाँ साहब ये बात हम कितनी दफा सुन चुके हैं ना, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को, इसको आर्टिकल 2(a) के तहत भी देखे ना, हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब, ठीक है लेकिन मुझे भी पढ़ लेने दो। पढ़े मगर टाइम की बात है फिर। 2(a) The principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है। इसमें ये कहा है wherein wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी perhaps बहुत बड़ी फॉलोइंग है उसको इलेक्शन से बाहर कर देंगे तो फिर उस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत सारे फारिग हो गए। नतीजा क्या है ऐसे इलेक्शन का जिसमें एक पॉपुलर पार्टी विद फॉलोइंग इज डिप्राइव्ड of contesting the election, participating in the election, it virtually deprives and deprives millions of vote of a follower. Even ये बात मिलियन वाली बात हो गई ना, आगे बढ़ते हैं ना जी। ये हमने noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence that the constitution is equally a legal and a political document. So no court, while interpreting the constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider
consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the political polity and the constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties, will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this Honorable Court to see that these consequences should not follow, and these consequences of a very serious nature, and I'll appeal before this Honorable Court that such decisions at times have implications running into years and years. Even today, some of the decisions taken by this Honorable Court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maureen in this case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. Ji. लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं। मैंने सुना है, कहा कि others are in person. I am only representing respond number. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगी ना, और तो नहीं करेंगे। I have to disclose that before the commission, I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते। जी मेरा नाम यूसुफ अली है। एक सेकंड। साबिका इलेक्टेड जनरल से एक मिनट। क्या नाम है? यूसुफ अली। जी आप क्या है? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाया। किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से। अच्छी बात है। 2013 का जनरल सुबह इलेक्शन में मैंने लड़ा है लेकिन साहब से MPA तो स्वाभिमान से। हाँ जी। आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था। ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट। हम आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए। मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे, हमने उनसे मालूमात चाही। हमसे पहले भी उधर लोग, बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं PTI में 2006। महमूद अहमद खान जी। मैं 2006 से PTI में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में। और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद PTI इस्लामाबाद जी ऑफिस एज व्हाट। मेरा थोड़ा सा आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? काम क्या करते थे आप? मैं I joined them as an ordinary member. Then I was given the 2 tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. कोऑर्डिनेटर। तो आप अब किस पार्टी में हैं?
अब किस पार्टी में हैं आप? पीटीआई में मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा। दैट इज पीटीआई असल। आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात यह थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं। मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे और लिस्ट का नहीं पता था। मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा, लेकिन देयर वाज नो नॉमिनेशन इंफॉर्मेशन। पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं, इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे मुझे, पर शायद मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए। ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। वी वांट डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड इट्स नॉट फॉर द पार्टी, एंड इफ देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द पार्टी there will be no democracy in the country. ठीक है, क्या वो आप भी बताएं, अपना तारुफ कराइए। कौन सी रेस्पोंडेंट? नंबर 11। नाम क्या आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ। मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद जरा वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जॉइंट सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई फिर, लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। देन आफ्टरवर्ड एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। उसके बाद नेमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब ही वाज डाइड 2 years बैक। नेमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान, तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ ऑफ मिस्टर नेमुल हक। जी नेमुल हक। और उसका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के टिल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, टिल ही डाइड। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, मतलब ही वाज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ, और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया और उमर अताब बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे धीर अपर नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी कि पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पर आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहाँ पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कहेंगी तो पता चलेगा। चले वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आज G8 में कोई घर है या नो इट्स अ बिल्डिंग बनाई, नो अपनी बिल्डिंग बनाई है पीटीआई ने। तो कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है। ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा,
ठीक, तो बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात यह है कि मुझे नेमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पीटीआई, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चलिए अब और कौन साहब हैं? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना। अजहर राना, ठीक। जी मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग डॉक्टर। ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? आप 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे। वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में यानी कि पहला कॉर्नर में गड़ी छाव में। कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अपने लोकल एरिया में हमने नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं गया था सेंट्रल ऑफिस और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टैक्स और वहाँ से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टैक्सलेस हो? टैक्सलेस जी। तो ये हालिया के दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए जिसमें लोग पीटीआई में आए थे वो फिर भाग गए यहाँ से, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़का हूँ पार्टी के लिए। ठीक, और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से, चक नंबर 312 गांव से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना यूसी 81 से टोबा टेक सिंह से। हाँ, यूसी 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीटीआई का सर। तब और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में पीटीआई की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव पे। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन? यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये तो टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था? कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आप पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में ज्वाइन इन 2016। आप किस पार्टी में? आप सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर। मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म शॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था। इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलिए ठीक है।
Okay. Malad, may I make short submissions? On Very short. Very short. I'll be as brief as I can. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to Mila 171. as my lord will observe, my lords will observe, मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीआई की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है और उसमें पहला सफा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमेटी थी जिसने ये आइन साजी की थी इसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम है। इसमें नंबर 1, नंबर 4 and inactive. I'm instructed also is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10 and 11 have left. Party. Ji. Only Mr. Hamid Khan, the chairman here. he left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership है, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. Chairman साहब, Sayyid Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active in the party. I believe he is still in the party. Ji, bilkul. Dr. Alvi, President Dr. Alvi, The president. Akbar S. Babar. They are very much. Okay. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. The page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to Why are you showing this to relevant? demonstrate that जो फॉर्मेशन है मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिलके हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव ना हूँ और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है। जी बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया अंसारी साहब के वापस ले ली अमेंडमेंट हुई और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी, पहले ये अभी बात की है जी। आई डू नॉट हैव the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात जी नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है पेज 58 जी, ये जो सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त, हाँ मैं रीड, आई कांट सी योर नेम, रीड इट। इसमें आप दिस लेटर इज रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। इसमें ऑथराइजेशन है, माय अपॉलॉजीज, इमरान खान साहब का सिग्नेचर है और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई करें और इसके आगे मैंने आपका नाम कहा जी, मैं वो एनेक्स में है वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर। Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो एप्लीकेशन में थी मुझे ऑथराइज, पार्टी कब बनी, कौन से साल में? पार्टी तो जी मिड 90s में बनी, ये आइन जो है 99 में आया और ये 2002 में क्यों आ रहा है? पहले क्या सिंबल था?
I'll have to get in touch with that. ठीक है, तो ये 61 हो गया। और कोई बात? और इस पे मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे कि जब शो कॉज देना होता है तो किस तरह शो कॉज दिया जाता है, पेज 63 पे। चलिए खैर, वो तो अलग बात है। और उससे जो किसको शो कॉज दिया है? दिस शो कॉज वाज टू मिस्टर अहमद खान। क्यों? He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to malafide. Whereas you are hereby charged. इसमें जो मैं जो ये कब की बात है? दिस इज December 1, 2019. इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice, और on page 65 I just want to read one line. This is 64 से पढ़ लेना। He will not quit party under any मैं वो उसी का जो मेन कोट था वो कर रहा था। So दुख की ये बात है कि a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 65 ये let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar is Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I show cause notice का क्या बना? I have जो पब्लिक नॉलेज है जी, खान साहब मेरे आगे बढ़े जी। उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं, ये वो जजमेंट्स हैं, एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं, पार्टी इसको कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर सकी। इस पेज पे जी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब, तीसरे वो जुमला बता दें जी। मैं उस पर इसमें आप रिस्पोंडेंट थे जी। ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का, जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई, वहां पर भी ये कहा कि ये मेंबर नहीं है, इसकी शिकायत मत वसूल करो। तो ये we went to the whole membership story multiple times and here where is it head that you remember? जी in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that paragraph 10 पेज बताइए। page 71 तो ये 10 से शुरू होता है जी। 11 में भी इसका डिस्कशन है और 13 पे आ जाता हूँ, 73 पे, टू कट इट शॉर्ट। paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary, and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice, which was never been issued in case to respondent number. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018। इसकी उन्होंने अपील की। There was an ICA and I believe that इस पॉइंट पे अपील this question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, रिट होती रही है। If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी फाइल कर सकता हूँ, मेरे पास वो हैंडी हो। At the end of the day उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से क्या बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी। स्टे ऑर्डर चल रहा है। I have not been associated in the show cause proceedings. I've आप एक क्लाइंट हैं, उनको पता होगा। नहीं, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे। पूछ
मे बी मैं गुजारिश तो लेना आपको तो शो करके की जरूरत नहीं, आप इंसान नहीं लिया नहीं उसमें ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कर दिया। उसके बाद पीटीआई ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जो लार्जर बेंच बना 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया, एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। वो ये कह रही थी कि शो कॉज के बाद चैलेंज बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर। तो अब इनके मुताबिक कोई अमर माने नहीं है। बट आई हम्बली से शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? November 2014. First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And